so this will change. And Fibonacci theorem tells us that if your function is continuous, then all the iterated integrals are same. Okay, then later on we saw how to draw that. There are some properties of triple integral as usual as it was of double integration. Next, if I put at the place of function, if I put 1, then I will be having triple integral of 1 dv, that is giving me volume. Recall in double integration अगर यहाँ पे 1 put करते तो that was giving me area. Now it is giving me volume. Yes, now procedure to find the limit. So suppose our D is a set of all x, y, z which is bounded by x, y belong to E. E is a bounded region which will be in x, y plane, and your z is lying between two function phi 1 and phi 2. Psi 1 actually, this is psi. Yeah. So the first thing is that we need to decide our limit for x and y, that is E. So this is what for E. E to B phi 1 phi 2. एंड ई में जैसे हम लोग किया था, जस्ट इफ यू वांट टू डू फ्रॉम एक्स एक्सिस देन लाइक दिस. एंड डी एक्स पे लिमिट क्या है, ए टू बी. सो डी एक्स यहाँ पे लिखा, यहाँ पे ए टू बी लिखा. देन व्हाट इज़ नेक्स्ट, इफ आई इंसर्ट अ रे हियर, सो व्हाट इज़ द एंट्री कर्व एंड एग्जिट कर्व. एंट्री कर्व ये सब डबल इंटीग्रेशन में किया था, सो आई एम नॉट गोइंग डिटेल हियर. ओके, व्हाट नेक्स्ट नाउ. Now let us draw our, see, now this is my base which has some, which is our E. This region is our E. Okay, now what, now z equal to psi 1 ड्रॉ करो, z equal to psi 2 ड्रॉ करो. ये जो E है उसको शिफ्ट करो, करेक्ट, ऊपर लेकर जाओ इसको. and we need to find area bounded by this thing. So whatever this volume is there, that is your volume which is bounded by z equal to this and z equal to this and over E. Do you see that? Whatever this volume is, something like that. Okay, so later on I think we did a example that was asking, where is that, yeah, if it is 0 to 1 x square to x f of x y dy, then I can write it as triple integration. If the condition is that here it will be 1, correct. So this is 0 to f of x y, and this is what it was. And then later we solve this, evaluate. This is the triple integration over this function. See, for triple integration we are going to see the bounds only, we are not going to see the function. What is your bound, x equal to 0, x equal to 1. Do you see that? For x equal to 0 and x equal to, for y it is y equal to 0 and y equal to 1 minus 1, correct. I am just writing the bounds. And next, z equal to 0 and z equal to 1 minus x minus y, correct. These are all bounds. So let us now let us decide E. What is our E? That is xy plane. So let us first do that. Yeah, this is your E. What is your E bounded by this thing, x0 x1. So what is your x0? This is this line, x1 is this line. Next, what is the y0 and y equal to 1 minus x. What is y equal to 1 minus x? That is x plus y equal to 1. That is, you can see this line, correct. This line is just 45-degree angle mostly. So the this is the thing. Now bounded by curve means what, this is my area which is bounded. So if I want to do from x-axis, then it is 0 to 1. See, here I am writing x equal to 0 to 1, that is dx here. So if I write dy, then insert a ray. What is the entry curve and what is the exit curve? Entry curve is y equal to 0 and exit curve is this equation. That is, what can you get the y ka value? Y equal to 1 minus x. So I am writing it here, y equal to 1. I don't know about the third, z के लिए अभी नहीं पता. So this is what we are having. जो black color में लिखा है, that is what we are having now. What next? अगर मेरे को ये साइड से लिमिट चाहिए तो, ये साइड से लिमिट चाहिए तो दिस इज़ y एक्सिस पे ये वेरी करेगा फ्रॉम 0 to 1. सो लास्ट में मैंने dy लिखा.
एंड डी वाई पे 0 to 1 वेरी कर रहा है. नेक्स्ट व्हाट इज़ द एंट्री फंक्शन एंड व्हाट इज़ द एग्जिट फंक्शन हियर. So entry will be from here, that is x equal to 0, and exit is this line. So इधर से x का वैल्यू क्या आएगा 1 minus y. So here this is your exit. So ये सब जितना भी किया हम लोगों ने, this was we were already doing this in your double integration part. Correct. Now the next part is to draw this thing, z equal to 0 and z equal to 1 minus x minus y. Yeah. So what is z equal to 1 minus x minus y? Can somebody tell me? This is a plane actually. If I write it as like this, x plus y plus z equal to 1, then this is a plane passing through three points. What are the 3 points? 0 0 1, 0 1 0, 1 0. You can check, just put it in the left side, it should give you 1. So that is satisfying. So it is a plane passing through 3 points. So तीनों पॉइंट से मैंने एक प्लेन बनाया. And do you see that this is inclined plane? Suppose ये मेरा base है, this is my base, and base को हम लोग ने पहले ही डिसाइड किया, this is our base E. So E को हम लोग ने पहले ही डिसाइड किया कैसा ड्रॉ हुआ है ऐसा. Do you see that? This is x axis, this is y axis, and ऐसा एक लाइन. Similarly मैं इधर भी ड्रॉ करूँगा, this is my x axis, this is my y axis which I have already decided. Correct. And this is my line. So base पे E पे मेरे को ये मिल गया, and around z axis यहाँ से एक plane है passing through this. Okay, now we need to decide limit for z. So what, इधर भी entry एक ray insert किया मैंने. What is the entry function and what is the exit function? So entry function is your this plane, that is z equal to 0. xy plane मतलब क्या होता है? There is no term of z, so that is z equal to 0. So entry function is z equal to 0, and exit ये रे निकलेगा किसको, you can write it like this also, ऐसा कुछ. बट एक्चुअली इधर से एंटर करा है ऐसा. So what is your entry? Entry will be from here and exit will be in this plane. Correct. So what is this plane? In the this is your plane z equal to 1 minus x minus y. So exit is z equal to 1 minus x minus y. सेम थिंग जो डबल इंटीग्रेशन में किया था, एक रे इंसर्ट करने का, एंट्री फंक्शन एग्जिट फंक्शन देखने का, दैट इज़ योर लिमिट. दैट इज़ व्हाट वी डिड हियर. करेक्ट. सो अपने को एग्ज़ाम में मोस्टली ये पार्ट में ग्राफ ये खुद के लिए है, सो दैट वी शुड अंडरस्टैंड कि ये कैसे होएगा. सी इधर से दो इटरेटेड इंटीग्रल मिल गए अपने को. फर्स्ट इज़ 0 to 1 और ये डी वाई डी एक्स मिल गया, और एक डी एक्स डी वाई मिल जाएगा अपने को बाय यूजिंग दिस. यहाँ पे दो इटरेटेड इंटीग्रल मिले ना, दोनों मैंने पुट कर. दिस इज़ I1, दिस इज़ I2. दो मिल गया. अभी मेरे को दूसरा चाहिए. अगर बाकी इटरेटेड निकल चाहिए तो क्या करना पड़ेगा मेरे को? लिमिट चेंज करना पड़ेगा. जो बेस मैंने एक्स वाई पे लिया है उसको चेंज करना पड़ेगा ये एक्स एक्सिस पे. देन एंट्री फंक्शन विल बी समथिंग लाइक दिस. वो केस में दिस फंक्शन इज़ वाई जेड फंक्शन. वाई जेड फंक्शन मतलब क्या? एक्स इक्वल टू ज़ीरो. मतलब यहाँ पे क्या आएगा? एक्स इक्वल टू ज़ीरो. एंड यहाँ पे क्या आएगा? सेम यही प्लेन इन द टर्म्स ऑफ जेड. इन द टर्म ऑफ आई थिंक एक्स. यस, दैट विल बी एक्स इक्वल टू 1. इधर लिखा भी है मैंने, अगर मैंने ऐसा एंट्री किया तो. ये बेस विल बी z इक्वल टू 0, सॉरी x इक्वल टू 0, एंड हियर इट विल गो समवेयर दिस प्लेन. सो फ्रॉम दिस प्लेन गेट द वैल्यू ऑफ x. नेक्स्ट थिंग, बाकी अगर लिमिट मिल गया तो उसके आगे तुमको सॉल्व करना है, दैट इज़ नॉट अ बिग डील. एक और एग्जांपल देखा था हम लोग ने. वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, दिस इज योर z इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड अलॉन्ग दिस y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड x इक्वल टू वाई स्क्वायर. सो फर्स्ट थिंग इज दैट पहले एक्स वाई प्लेन ड्रॉ करने का, दैट इज़ आवर ट्रिक. सो पहले एक्स वाई प्लेन ड्रॉ किया मैंने, देखो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ड्रॉ किया, x इक्वल टू वाई स्क्वायर, एंड पॉइंट्स निकाला, एंड फाइनली मैंने डबल इंटीग्रेशन के लिमिट निकाले. सपोज डी वाई डी एक्स चाहिए, मतलब डी एक्स चाहिए मैं तो एक्स एक्सिस पे चाहिए. तो दिस इज़ 0 to 1, 0 to 1 here. Entry function and exit function. Tell me what is entry function? Y equal to x square. So lower limit will be y equal to x square, and upper limit will be y equal to root x.
फ्रॉम हियर यू विल गेट वाई इक्वल टू रूट एक्स, करेक्ट. सो अभी मेरे को एक्स वाई एक्सिस, ये एक्स एंड वाई एक्सिस का मिल गया. यू कैन राइट इट एज डी वाई डी एक्स है तो डी एक्स डी वाई भी कर सकते हो. जस्ट यू नीड टू एंट्री यहाँ से लाना पड़ेगा. कैन यू सी दिस? सो इन दैट केस ऑल्सो 0 to 1 ही है, बट फंक्शन का लोअर और अपर लिमिट चेंज होएगा. हियर द लोअर लिमिट विल बी, क्या आएगा, x इक्वल टू रूट वाई, एंड दिस इज, हाँ नो, x इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड x इक्वल टू रूट वाई. इट विल बी वाई स्क्वायर टू रूट वाई. एंड नाउ द थिंग इज अभी z एक्सिस का देखना है ये. सो लेट अस सी. सो व्हाट इज द ग्राफ? दिस वाज द ग्राफ. सी, पहले तो इसका ग्राफ समझते हैं. z इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, व्हाट इज दैट, करेक्ट. सो वन थिंग इज दैट मैथमेटिकली अगर तुमको समझना है तो z इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, put some value of z, you will see that it is giving me x square plus y square equal to some constant, suppose 1 2 3. So that is at each point there, at each z we are getting a circle. Do you see that, something like a circle, and each time it is, as z is increasing it is going above. Let me just draw this thing I have drawn. Just give me 1 minute. So let me write z equal to x square plus y square. This was the function. Is it clear? Can you see that? Do you see that? This is how your function is, z equal to x square plus y square. Paraboloid बोलते हैं इसको. Do you see? Correct? नो एक्चुअली इज इक्वल टू है ना, तो इज इक्वल टू मतलब क्या, सिर्फ बाउंड्री की बात कर रहे हैं हम लोग. हॉलो अंदर, सी अगर लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन रहता ना तो वी कैन से समथिंग. सी सर्कल ही ले ले, तो सर्कल में अगर मैंने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 लिखा तो क्या मिलता है मेरे को? अरे हाँ भाई, बट सर्कल इज इट हॉलो और सॉलिड? बाउंड्री ना, करेक्ट, दैट इज व्हाट आई वाज टेलिंग. सो मतलब अगर ये इक्वेशन रॉ किया तो मेरे को सिर्फ बाउंड्रीज मिलेगा. ये हर एक सर्कल का बाउंड्री मिल रहा है, समझ रहे हैं, मतलब दैट इज हॉलो सर्कल, करेक्ट. अगर इसी को मैंने ऐसा लिखा होता, z इज लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और z इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, डू यू सी दैट? देन आइदर ऊपर वाला रीजन मिलता मेरे को और नीचे वाला रीजन मिलता. जब भी लेस देन ग्रेटर देन आता है ना, इनइक्वालिटी आता है, तो रीजन मिलता है अपने को. सो इज द ग्राफ क्लियर नाउ? नाउ अपने को करना क्या है, व्हाट इज द थिंग, जस्ट सो अपने को अभी करना क्या है, ये this is what we are having, something like this. When I put z equal to 0 then value will be 0, so something like this, which you saw just now. And here it is, each time it is like a circular thing, for each z, करेक्ट. अभी क्या करना है अपने को, इधर से एक रे इंसर्ट करना है, एंड हियर आई एम हैविंग, क्या है यहाँ पे, पैराबोला का था ना, क्या था ये, या डू यू सी दैट, दिस समथिंग लाइक पैराबोलॉइड, ऐसा कुछ एंड ऐसा कुछ. सो दिस इज माई ई, डू यू सी दैट, दिस इज माई ई, करेक्ट. सो अभी मेरे को करना क्या है, ई से एक रे इंसर्ट करना है, यहाँ से एक रे इंसर्ट किया. सो सी मेरे को इसका सिर्फ बाउंड्री है, बाउंड्री, करेक्ट. सो दिस विल बी माई एंट्री, दिस विल बी माई एग्जिट. एंट्री क्या है, दैट इज इन एक्स वाई प्लेन, दैट इज z इक्वल टू 0, एंड एग्जिट क्या है, इन दिस,
paraboloid, that is z equal to x square plus y square. Correct? Is it clear? If I show you here, then it is something like this. If I insert a line here, so do you see that entry will be x equal to 0 and exit will be like this. सी एक्चुअली यहाँ पे मेरे को एक लाइन जो चाहिए था, ये लाइन ना, ये मेरे को ज़ीरो से होके पास होना चाहिए था. ये लोग ने एक्चुअली पूरा एक साथ ही दिखा दिया है, -2 से लिया है. दैट इज़ व्हाट आई डोंट वांटेड हियर. आई जस्ट वांटेड कि ज़ीरो से मैं यहाँ से ऐसा करूँ. सो योर लाइन विल बी समथिंग लाइक दिस. यहाँ से लाइन आएगा एंड वी वांट दिस पार्ट ओनली. So that will be entry. If I have that, not write it actually here. See, this is my base here, because if I put x equal to, शायद इस पे देख नहीं रहा है अपने को, 3D में थोड़ा सा प्रॉब्लम होएगा, but that is your base. You can check. See, z equal to 0 अगर पुट किया मैंने तो क्या आएगा मेरे को, दो स्क्वायर टर्म का इक्वल 0 कभी आएगा जब x and y both are 0. That is true. So मतलब, या you can see now from here it is quite same. z equal to 0 पे ये है एंड ऐसा. सो नाउ इफ आई, अपने को क्या करना है, वी नीड टू इंसर्ट अ रे हियर, अ रे whose entry is xy plane, that is z equal to 0 and exit will be somewhere here. यहाँ से exit करेगा, कहीं से भी ले लो, that is your exit. So that means here it is z equal to 0 and here it is z equal to x square plus y square. and x and y पे तो पहले ही देखा है तुमने क्या लिमिट है. दैट इज़ दिस. सो दिस इज़ माई टोटल ट्रिपल इंटीग्रेशन. तो क्वेश्चन तुम्हारा ऐसा दिया था, हम लोग ने फॉर्म क्या किया, वी फॉर्म्ड इट एज ट्रिपल इंटीग्रेशन. वॉल्यूम निकालना था तो यहाँ पे 1 लिखा. दैट्स इट. Okay, so let me do some more graphs actually that will be used to you. So the first in is plane. Plane क्या होता है, you must be knowing that is of the form ax plus by plus cz equal to some d. Correct? इवन अगर 12th स्टैंडर्ड में जाओ तो समथिंग ये n इंटू आर इक्वल टू ई, आई थिंक कुछ होता है शायद. नॉट, n इज़ नॉर्मल वेक्टर एंड r इज़ एनी एक्स वाई जेड. दैट इज सेम थिंग. डॉट प्रोडक्ट लिया तो यही आएगा. करेक्ट? सो प्लेन को ड्रॉ कैसे करते, प्लेन इज जस्ट लाइक अ मैट, यू कैन से दिस इज योर प्लेन. ओके, समथिंग लाइक दिस. सो इफ आई टेक x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, देन क्या आएगा, प्लेन ड्रॉ करने के लिए मेरे को 3 पॉइंट चाहिए एटलीस्ट. सो कोई भी 3 पॉइंट मिला, सो आई कैन ड्रॉ अ प्लेन. इफ यू वांट मी टू शो दैट, सो लेट अस डू x प्लस y प्लस z. Do you see that? Is equal to 1. Do you see that, everyone? This is your plane. सी, अगर x प्लस वाई इक्वल टू 1 होता तो जस्ट मेरे को एक लाइन मिलता. प्लेन के केस में क्या होता है, दिस इज कलेक्शन ऑफ लाइंस. यू कैन सी दिस इज लाइन, दिस इज लाइन, दिस इज लाइन. हर एक लाइन को साथ में कंबाइन किया, सो यू विल गेट समथिंग लाइक अ मैट. घर पे जो मैट है वैसा टाइप. दैट इज़ योर प्लेन. सो अगर मैंने z इक्वल टू 0 बोला, मतलब क्या आएगा, एक्स वाई प्लेन, दैट इज़ अ प्लेन. करेक्ट? दिस इज़ इन जनरल बात किया हम लोगों ने. करेक्ट? दिस इज़ प्लेन हो गया. नेक्स्ट आता है एलिप्सॉइड. स्पीयर बोलना चाहिए था, बट एलिप्सॉइड इज जनरल केस, सो आई विल डू दैट. दिस इज ओ एलिप्सॉइड. व्हाट इज द इक्वेशन, एक्स स्क्वायर बाई ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इक्वल टू 1. एलिप्स का इक्वेशन क्या था, जेड टर्म नहीं था, अभी क्या है, जेड टर्म है. सो दिस इज माई एलिप्सॉइड.
Okay, if I put a, b and c equal to 1, then I will be having sphere. That is you are aware with. सो एलिप्सॉइड का एग्जांपल दूँ तो मेरे को एक ही चीज़ दिखता है, एग. करेक्ट, दैट इज ऑफ एलिप्सॉइड. इज इट क्लियर? सी यू कैन, अगर तुमको विजुलाइज करना है तो क्या करने का, एक को अगर मैंने कट किया, सो व्हाट शेप यू विल गेट अ शेप ऑफ एलिप्स, समथिंग लाइक दैट. ऐसा अगर कट किया, ऐसा भी कट किया, तो यू विल गेट समथिंग लाइक एलिप्स. स्फीयर को अगर मैंने कट किया तो आई विल गेट सर्कल. कट करना मतलब क्या, पुटिंग द वैल्यू ऑफ जेड. जेड का वैल्यू कुछ पुट कर रहा हूँ मैं. सो व्हाट विल आई गेट? इफ़ यू वांट, लेट मी सी ग्राफिकली दिखता है क्या ये. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू सी टू. यस, अभी ये कैसा आ गया? यस, कैन यू सी दैट? आई थिंक ये साइड से थोड़ा सा इधर लाना पड़ेगा. यस, कैन यू सी दैट? दैट इज, well, if I change the value here, say if I put 2, you will see something ellipsoid. Can you see? Yes, that is quite good. If I change some more values here, do you see? See, the width is quite less. If you want, I can put some value. 6 put किया, यहाँ पे भी suppose 2 put किया, correct? So this is the ellipsoid. And सबका coefficient अगर 1 रहा तो that is your. Is it clear? I think. Yes. So that was the ellipsoid. See, one more thing. Uh, at the place of x, if I put x minus x naught, like how we did in our ये एक्स वाई प्लेन में ग्राफ के लिए जो भी किया था, y माइनस वाई नॉट रेज टू द होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर. सो कोई बताएगा ये एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट क्या रहेगा? एलिप्स में एक्स नॉट माइनस वाई नॉट जेड नॉट क्या रहते हैं? उसका एक नाम है, शायद वर्टेक्स बोलते हैं. याद है तुम लोग को? व्हाट इज़ योर वर्टेक्स? दिस पॉइंट. सो ये केस में भी है, यही सही रहेगा वो. बट ये केस में योर वर्टेक्स, दिस विल बी योर पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट. अगर ज़ीरो बोला तो ये, अगर कुछ और बोला तो दैट इज़ समथिंग लाइक दैट. ठीक है. ओके, दिस वाज ऑल अबाउट एलिप्सॉइड. नेक्स्ट आता है कोन. कोन के बारे में तुमको पहले से ही पता है. आइसक्रीम कोन. जेड स्क्वायर, दिस इज़ द जनरल फॉर्म. जेड स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर. करेक्ट, डू यू सी दैट? अगर सबका स्क्वायर हो बट दिस इज जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऐसा हो, ये केस में दिस इज अ कोन. या सो लेट मी ड्रॉ इट इफ यू वांट. जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. अभी adjustment is quite an issue. Yes, beautiful. Can you see that? This is your cone.
जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर. सी इफ यू पुट द वैल्यूज एक्स स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट चेंज किया तो ग्राफ तुम्हारा चेंज होएगा. टू पुट किया तो सी वर्टेक्स शायद चेंज हो रहा है, विड्थ भी चेंज हो रहा है इसका. लाइक दिस you see that width is quite thinner now. 6 किया तो ऐसा, 10 किया तो 16 हो गया बहुत ही. 10 1 किया तो सबसे बड़ा. इज इट क्लियर टू यू? दिस इज योर कोन. ओके. सो सेम ये केस में अगर सी और ए बी को 0 1 लिया तो यू विल गेट योर सर्कल. करेक्ट. स्फीयर के केस में भी ऐसा ही था. स्फीयर के केस में z इक्वल टू 0 लेना था, देन यू आर गेटिंग सर्कल, यूनिट सर्कल था. एंड दिस इज योर z स्क्वायर इक्वल टू, ये केस में z इक्वल टू वैल्यू लेना है, 0 नहीं लेना है. करेक्ट. इज इट क्लियर? नेक्स्ट आता है इलिप्टिकल पैराबोलॉइड, जो शायद हम लोगों ने किया है एक क्वेश्चन. इलिप्टिक पैराबोलॉइड that is z by c that is equal to x square by e square plus y square by b square. Do you see that? यही क्वेश्चन किया था ना हम लोग ने. सो दिस वाज पैराबोलॉइड समथिंग लाइक दिस. सो स्टार्ट में ही शायद मैंने इसको शो किया तुम लोग को. इट इज केस z का वैल्यू पुट किया तो इट इज सर्कल, बट इट इज एलिप्टिकल हियर. शायद मैंने शो किया है. स्टिल इफ यू वांट, z इक्वल टू है ना. डू यू सी elliptical paraboloid? दिस इज योर elliptical paraboloid. नाम याद रहना चाहिए मोस्टली. अभी नाम का यूज़ है अपने को. वी विल रेफर देम बाय देयर नेम ओनली. या नेक्स्ट एक और है हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट. हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1. सो दिस इज योर हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट. हाइपरबोलॉइड ऑफ टू शीट क्या रहेगा? दो टर्म नेगेटिव रहेगा, एनी टू ऑफ देम. सो पहले वन शीट का ग्राफ देखते हैं हम लोग. ठीक है. ए बी और सी को मैं वन ही लेता हूँ मोस्टली. सो व्हाट इज द इक्वेशन? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. नेक्स्ट माइनस जेड स्क्वायर ना, माइनस जेड स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1. यस. Yes. Can you see that? That is your hyperboloid. सी हाइपरबोला कैसे होता है तुम लोग को पता है? अगर मैं सिर्फ ये लिया था, रिकॉल, अगर हाइपरबोला बनाया मैंने एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1. सो हाइपरबोला यूज टू बी समथिंग लाइक दिस. करेक्ट. अभी हाइपरबोलाइड मतलब क्या? हर एक केस में मेरे को ऐसा ही मिल रहा है, वेरीज ऑन जेड, जेड पे वेरी कर रहा है ऐसा. सो जस्ट सी द ग्राफ हियर. डू यू सी दैट at each point we are getting a hyperbola. थोड़ा सा ऊपर जाता हूँ मैं. at each case you will be getting a hyperbola and ये वैरी हो रहा है किस पे? हर एक पॉइंट पे देखो. ट्राई टू सी. फर्स्ट पे ऐसा 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 हाइपरबोला लाइक दिस. दिस इज योर हाइपरबोला. डू यू सी दैट? दिस वाज एक पे अगर मैंने नेगेटिव दिया, अगर दो वैल्यू पे नेगेटिव दिया तो दैट इज हाइपरबोलाइड ऑफ टू शीट होता है.
that is, see, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बोला, माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बोला, प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1 अगर ऐसा हुआ, ठीक है। सो लेट अस सी ग्राफ, क्या चेंजेस करें, माइनस वाई स्क्वायर को भी माइनस बोल दो, जेड स्क्वायर को प्लस ही रहने देते हैं। वैसे ये टाइम पे दोनों अलग हुए, इट इज़ परफेक्टली लुकिंग लाइक हाइपरबोला अगर देखो तो, यस, हियर दिस इज योर हाइपरबोला, एच इज कर्व, ये जो लाइनिंग है ना, यू कैन कंसिडर इट एज कर्व। सो मतलब सरफेस बनता कैसे है, सरफेस इज कलेक्शन ऑफ कर्व, यस, यू कैन सी इट। This is your hyperboloid of two sheet, correct। एक और एक्चुअली लास्ट है, दैट इज कॉल्ड, आई डोंट नो उसका ग्राफ बनेगा भी कि नहीं इस पे 3D पे, दैट इज कॉल्ड हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड। मोस्टली अपने लिए इम्पोर्टेंट क्या है, बस ये तीन चार लोग, प्लेन, नेक्स्ट इलिप्सॉइड, नेक्स्ट कोन एंड इलिप्टिकल पैराबोलॉइड, दैट इज़ व्हाट रिक्वायर्ड ईयर। ये सब ज़्यादा एडवांस में आ जाते हैं, सो दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू अस। सो लेट मी राइट द इक्वेशन, जेड अपॉन सी दैट इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, दैट इज कॉल्ड हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड, करेक्ट। ओके, लेट मी ड्रॉ इट, वेदर अगर ड्राइंग है क्या, z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, okay, do you see that, it is something like, here it is going up and here it is coming down and here again it is going up, is it clear to you? Yeah, this is your hyperbolic paraboloid, it's called hyperbolic paraboloid, yes, okay then. So now let us come back to our things. So let us do one more problem on that only, on triple integration. Now we know the technique, how to do that, how to draw. Yeah, suppose I have a question, this